Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on production and operations management. The course code is MGT 362. The course book is Operations Management 10th edition by J. Heiser and Barry Randall. Okay. In the last lecture we finished on chapter 6. We were on the last part of chapter 6, and in today's lecture we will be finishing first chapter 6 and then we will start chapter 6s. As you know, both of these chapters are on quality management. The chapter 6 is basically concerned with the theory of quality management, what are the different philosophies of quality management, what are the different techniques with which we can manage quality, what are the different tools with which we can manage quality, and 6s is basically concerned with statistical process control. How can we measure, monitor and control any service or any production process using statistics, and that we will be studying in chapter 6s. So in the last lecture we finished on this slide. We discussed what is source inspection. Basically source inspection is also known as source control. The next step in the process is your customer ensures perfect product to your customer. POCA-YOCA is a concept of foolproof devices or techniques designed to pass only acceptable product. तो what is source inspection? मैंने आपको बताया था ना कि इंस्पेक्शन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. पहले तो सप्लायर की प्लांट पे करें, फिर उन इंटरेक्शंस पे करें जहाँ से सप्लायर और आपकी कंपनी का इंटरेक्शन होता है कि सप्लायर आपको चीज़ भेजता है, तो उस जगह पे आप उनका इंस्पेक्शन करें. फिर आप उन जगहों से पहले इंस्पेक्ट करें कि जी जहां आप उस पर कोई वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं प्रोडक्ट पे, तो उससे पहले आप इंस्पेक्शन करें. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन उसमें इंस्पेक्शन करें, और फिर आखिर में कस्टमर को पहुंचाने से पहले एक दफ़ा इंस्पेक्शन करें, यानी कि इंश्योर के कस्टमर को हमेशा सही चीज़ मिले. तो कस्टमर को पहुंचाने से पहले जो इंस्पेक्शन की जाती है उसको सोर्स इंस्पेक्शन कहा जाता है. इट इज़ ओनली टू इंश्योर दैट द customer gets only the quality product or the product that you have designed and tried to give to your customer. तो इसीलिए क्वालिटी की प्रोडक्ट पहुंचे उसके लिए हम सोर्स इंस्पेक्शन करते हैं. सोर्स इंस्पेक्शन के अंदर बहुत एक कॉन्सेप्ट है पोका-योका का, जो फूल प्रूफ डिवाइसेस या टेक्निक्स which are designed so that only the acceptable product goes to your customer. अब इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपने मैकडॉनल्ड्स में देखा होगा कि वो चिप्स एक ख़ास तरह के चमचे से निकालते हैं और फिर उसको उसके डब्बे में डालते हैं. वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि दे वांट टू इंश्योर कि जो प्रॉपर पोर्शंस बताए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं मैकडॉनल्ड्स की तरफ से, वही उसके कस्टमर्स को मिले. कोई उनका लोकल लोग जो नए लोग हों या पुराने लोग हों उनकी वजह से प्रॉब्लम ना पड़े, हर कोई उस चमचे को भरे और उसको उसमें डाल दे. इससे इंश्योर होता है कि जी एक ख़ास क्वांटिटी हर कस्टमर को मिलेगी और जो वेरिएशन ऑफ प्रोसेस है वो कम से कम होगी. ठीक है. अब जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर 6 का, दैट इज़ व्हाट इज़ attributes and variable. It is very important that we understand this concept here. We will be discussing this concept in the next chapter, but overall this concepts of attributes and variables have been discussed in statistics, in quality management and in statistical process control. So it is very important that you understand what is basically meant by an attribute and what is basically meant by a variable. ठीक है. Items are either good or bad, acceptable or unacceptable. Does not address degree of failure. अब आपके पास एक हर तरह की जो चीज़ आपके पास इन प्रैक्टिस आपको जिस तरह की भी वैल्यूज मिलेंगी, दे विल बी आइदर एट्रीब्यूट्स और दे विल बी आइदर वेरिएबल्स. ठीक है. एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स. एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो आपको किसी चीज़ के
कोई ना कोई खासियत बता रहे हों कि जी दिस थिंग इज आइदर एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, और इट इज गुड और नॉट गुड। इसके अंदर ये नहीं पता चल रहा होता कि डिग्री ऑफ फेलियर क्या है। इफ अ प्रोडक्ट और इफ अ सर्विस इज बैड, तो इसके अंदर ये नहीं पता चलेगा हाउ मच बैड, ठीक है। या इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये नहीं पता चलता कि कितनी अनएक्सेप्टेबल है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, वो बल्ब या तो काम करेगा या तो काम नहीं करेगा। उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि वो ना काम करने से इतना दूर है या काम करने से इतना करीब है। तो ये क्या एट्रीब्यूट्स हैं? ये एट्रीब्यूट्स हैं कि आइदर इट इज वर्किंग और इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल्स क्या होते हैं? दे मेजर डायमेंशन सच एज वेट, स्पीड, हाइट, स्ट्रेंथ, फॉल्स विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज, ठीक है। अब किसी भी चीज को मैयर करने के लिए, क्वालिटी को मैयर करने के लिए, आइदर यू विल बी यूजिंग एट्रीब्यूट्स और यू विल बी यूजिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब ऐसी एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी के जी लेट्स से कि जी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, एक सीरियल बॉक्स बना रहे हो, और उसका जो वेट है दैट इज इट्स क्वालिटी मैयर, कि जी आपको एक खास वेट की प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचानी है, 200 ग्राम की प्रोडक्ट पहुंचानी है, ठीक है। अब ये जो 200 ग्राम है इससे 180 हो जाएगा, तो आपको पता है कि जी 200 से 20 ग्राम कम है। अगर ये 220 हो जाएगा तो आपको पता है कि 200 से 220 ग्राम ज्यादा है। ये क्या है? ये वेरिएबल है। अगर आपने सिर्फ इस तरह करना हो कि जी हमारे पास ये बल्ब है और हमने इसको वर्किंग कंडीशन में पहुंचाना है, तो आइदर इट विल बी वर्किंग और इट विल नॉट बी वर्किंग, ठीक है। आइदर इट इज एक्सेप्टेबल और इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। सर्विस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं क्वालिटी की जिनको हम एट्रीब्यूट से मेजर करते हैं। आइदर द सर्विस इज एक्सेप्टेबल और इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। या हम एक और टेक्निक यूज कर लेते हैं जिसके अंदर हम एक स्केल बना देते हैं 1 2 3 4 5, और उनमें से कहते हैं कि आपको सर्विस कितनी, 1 इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, 5 इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, दरमियान में उसका ग्रेडेशन कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्वालिटी के ऐसे टॉपिक्स आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो आप सिर्फ वेरिएबल से मेजर नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता होता कि जी कितना डिग्री ऑफ फेलियर हो रहा है, तो उस केस के अंदर फिर हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? देख, किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, आइदर इट इज गुड और बैड टू द कस्टमर, आइदर इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर, ठीक है। इसके अंदर जो है एट्रीब्यूट्स के अंदर डिग्री ऑफ फेलियर का हमें नहीं पता चलता कि कितना खराब है या कितना अच्छा है। वेरिएबल्स के अंदर हमें मेजरेबल डायमेंशंस मिलती हैं, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, ये सारी की सारी जो है ये वेरिएबल्स हैं। इन दोनों पे एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स पे, इन दोनों पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगती हैं इन ऑर्डर टू मैनेज क्वालिटी, ठीक है। अगर आपके पास डाटा एट्रीब्यूट्स में है तो उस पर एक खास सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगेंगी। अगर आपके पास डाटा एट्रीब्यूट वेरिएबल्स के अंदर है तो फिर उसके ऊपर दूसरी तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगेंगी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन सर्विस quality is more difficult to measure than the quality of goods. Service quality perception depends on intangible differences between products, intangible expectation customers have of those products. अब ये वही बात है कि जी सर्विस की जो क्वालिटी होती है, इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लेट से कि जी आपने उसकी क्वालिटी डिफाइन कर दी है कि ये 200 ग्राम की होगी, ठीक है। इसके अंदर जो वीट लेट से कि जी हम किसी सीरियल जो नहीं होता फौजी सीरियल या जो दूध में डाल के खाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने अपने कस्टमर तक पहुंचानी है, उसकी सीरियल बॉक्स की ये है कि जी हमने 200 ग्राम का सीरियल का डब्बा अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, 200 से कम नहीं होना चाहिए, 200 से ज़्यादा हो जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर ज़्यादा करेंगे तो आपको यू विल लूज मनी। सो आपकी
कोशिश ये है कि आप 200 ग्राम का सीरियल बॉक्स अपने कस्टमर तक पहुंचाएं, और इससे कम नहीं होना चाहिए, मगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको नुकसान होगा। तो 200 तक यू वांट टू मेंटेन अ 200 ग्राम वेट। अब ये आपकी जो प्रोडक्ट की ना क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है कि जी हमने कम नहीं करना। तो सर्विस प्रोडक्ट की क्वालिटी यू कैन मेजर वेरी इजीली। ये क्या है? ये आपके पास वेरिएबल है। वेरिएबल किस तरह से है? क्योंकि अगर 200 से कम हो जाता है 180, तो आपके पास एक डिग्री ऑफ फेलियर आ रहा है कि हाँ ये 200 से इतना कम है या 200 से इतना ज्यादा है। ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर आपको ये नहीं पता चलता। सर्विस के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जी सर्विस आपने इस तरीके से देनी है। बहुत इनटेंजिबल किस्म के ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो सर्विस क्वालिटी को मेजर करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि सर्विस के अंदर हम हमेशा एट्रीब्यूट्स ही यूज करें, हम सर्विस के अंदर वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह सर्विस टाइम है, सर्विस टाइम एक क्वालिटी मेजर है सर्विस का। ठीक है, क्वालिटी मेजर है ऑफ सर्विस। इसका मतलब है कि जी आपने एक सर्विस टाइम डिजाइन किया हुआ है कि जी कस्टमर आएगा तो उसको 2 मिनट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब 2 मिनट से 3 मिनट हो जाएंगे तो क्या होगा? आपको डिग्री ऑफ फेलियर पता चल गया ना कि यार ये 1 मिनट जो है ये डिग्री ऑफ फेलियर है। तो ये भी सर्विस टाइम भी वेरिएबल है, एट्रीब्यूट नहीं है। सर्विस के अंदर भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं जिस तरह हम प्रोडक्ट के अंदर यूज करते हैं, मगर नॉर्मली प्रिडोमिनेटली सर्विस के अंदर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको हम प्रॉपर वेरिएबल स्केल पे नहीं मेजर कर सकते। तो फिर उस केस के अंदर हम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी के और भी तरीके हैं। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि अगर हम क्वालिटी मेजर कर रहे हैं तो हम 2 तरीकों से मेजर कर सकते हैं कि जी अब मैंने अगर इस रॉड की थिकनेस चेक करनी है कि जी वो कितना थिक है, तो मैं जितने भी रॉड्स बनेंगे मेरे प्रोसेस से, ये एक प्रोसेस है जिससे मैं ये रॉड्स बना रहा हूं, और उस प्रोसेस से मैं एक खास लेंथ और एक खास विड्थ के रॉड्स बना के अपने कस्टमर तक पहुंचा रहा हूं। अब मैंने चेक करनी है, क्वालिटी इंस्पेक्शन करनी है। क्वालिटी इंस्पेक्शन में 2 तरीकों से कर सकता हूं। एक तरीका ये है कि जी जो हर रॉड निकल रहा है उसको पकड़ के मैं चेक करूं, जो बना है उसको मैं उसके थिकनेस स्केल पे चेक करूं और देखूं कि हाँ ये इतनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, इट टेक्स टाइम। अब इसके अंदर क्या, आपने रॉड लिया, उसको कैलकुलेट करने के लिए उसकी प्रॉपर मेजरमेंट हाथ से पकड़ के की। अब दूसरा ये क्या हुआ, इससे जो आपके पास डाटा आएगा वो वेरिएबल में आएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका यह है कि इसी रॉड को मैं एक टेम्पलेट अपना एक इस तरह का टेम्पलेट बना लूं जिसके अंदर जो ये थिकनेस है वो उस थिकनेस के मुताबिक हो जो मुझे चाहिए, और मैं इस टेम्पलेट से रॉड को गुजारूं। अगर रॉड गुजर गया तो वो रिक्वायर्ड थिकनेस पे, अगर रॉड फंस गया तो वो इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड थिकनेस। तो आइदर इस प्रोसेस से आइदर द रॉड इज एक्सेप्टेबल और इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब क्या हो गया, ये इक्वालिटी इंस्पेक्शन हो गई इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से मेजर कर रहे हो और आपके पास किस तरीके का डाटा आ रहा है। तो एट दिस स्टेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता हो कि जी एट्रीब्यूट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सर्विस क्वालिटी परसेप्शन डिपेंड्स ऑन इनटेंजिबल डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोडक्ट। सर्विस के अंदर टीक्यूएम इंप्लीमेंट करने में जरा सी जो प्रॉब्लम और आती है कि जी इनटेंजिबल डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स। सर्विस की क्वालिटी की एक तो परसेप्शन होती है, आपकी प्रोडक्ट की भी परसेप्शन होती है, क्वालिटी परसेप्शन, और सर्विस की क्वालिटी परसेप्शन जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि और कौन कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं या और कौन सी सर्विसेज कस्टमर के पास अवेलेबल हैं। तो उन सर्विसेज से जब वो कंपेयर करता है तो बहुत सारे टेंजेबल और इनटेंजेबल जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उनको वो कंपेयर करके एक सर्विस को सिलेक्ट करता है। तो सर्विस की क्वालिटी को मेजर करना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। सर्विस की क्वालिटी की जो परसेप्शन होती है दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द कस्टमर एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर के जी कस्टमर अपनी सर्विस से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। आप उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस सर्विस की जो परसेप्शन है कस्टमर के जहन में दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द
availability of different services that are available to him, and what is he expecting from your service. ठीक है, तो इसलिए सर्विस की जो क्वालिटी होती है उसको मेजर करना, उसको क्वांटिफाई करना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, because it depends on a lot of intangible expectations and intangible perceptions. In the operations managers must recognize the service process is important. The service is judged against the customer expectation, and exceptions will occur. कोई भी ऑपरेशंस मैनेजर होता है उसको इस चीज़ का रिकग्नाइज करना चाहिए कि जी सर्विस का जो प्रोसेस है इट हैज़ टू बी गुड, उसको कस्टमर को अकोमोडेट करने की हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि जो सर्विस का प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उसमें कोई ऐसी जगह ना आए जिस पे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी ना हो रही हों. ठीक है, जो कस्टमर की परसेप्शन थी आपकी सर्विस के बारे में और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हों, हमेशा ऐसा सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन करना चाहिए. और इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि कभी ना कभी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और ये जो फेलियर पॉइंट्स होते हैं इनका भी ख्याल रखना चाहिए. पहली तो बात यह है कि जी सर्विस का प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको इस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है कि वो जो आपका कस्टमर है उसकी परसेप्शन, उसकी एक्सपेक्टेशंस सारों पे वो पूरा उतरे. और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इफ़ अ फेलियर अकर्स इन योर सर्विस देन हाउ विल यू हैंडल दैट फेलियर. ठीक है, expectation will occur, failure will occur, how can you handle that failure? बहुत सारे आपके सर्विस के क्वालिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ग्लोबली जो ज़्यादातर फैक्टर्स नज़र आते हैं वो रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कॉम्पिटेंस, एक्सेस, courtesy, communication, credibility, security, understanding, knowing the customer, and tangibles, physical evidence of the service. अब इन सारों की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में इनकी डेफिनेशन ज़रा चेंज होएंगी. रिलायबिलिटी एक सर्विस के अंदर एक फैक्टर होगा, यानी कि इफ़ यू आर आप पोस्ट प्रोवाइड कर रहे हो या पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को, तो तब रिलायबिलिटी एक सेंस में ली जाएगी कि हाँ हमें हर वक्त जो टाइम होता है उस टाइम पे पहुंचाया गया है. इट डजेंट रियली मैटर कि किस तरह का वेदर है, मगर हमें मेल पहुंचती है. तो रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस इस तरीके से होती है. दूसरी रिलायबिलिटी अगर आपके बैंक्स में हो तो उसमें रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस इस तरह से देखी जाती है कि जी जब भी मैं कस्टमर जाए उसको कोई ना कोई हेल्प मौजूद हो या उसको इस चीज़ की अश्योरेंस हो कि जी मुझे सर्विस प्रोवाइड होगी. तो रिलायबिलिटी ऑफ सर्विसेज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, मगर ओवरऑल उसकी जो मीनिंग होते हैं वो यही है कि कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिपेंडेबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब ओवरऑल सर्विसेज के अंदर बेसिकली इस टर्म से या इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है. रिस्पॉन्सिवनेस इज द विलिंगनेस और रेडीनेस ऑफ द एम्प्लॉयज. कॉम्पिटेंस इज द रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज. एक्सेस इज एक्सेसिबिलिटी एंड ease of contact. Courtesy is the politeness. Respect, consideration, friendliness. Communication is keeping customers informed. Credibility is trustworthiness. Believability, honest. Security is freedom from danger, risk or doubt. Understanding is understanding the customer needs. Tangibles are the physical evidence of the service. अब physical evidence of the service आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है of a postman. उसके अंदर पूरा एक टेबल बना के बताया हुआ है कि जी फिजिकल एविडेंस या टेंजिबल चीज़ें क्या होती हैं सर्विस के अंदर. ठीक है, तो समराइजिंग TQM in services,
TQM की जो सर्विस, total quality management in service is difficult. It is difficult to manage, it is difficult to control. The process of quality management in services is difficult to manage, difficult to control, difficult to evaluate. इसके अंदर बहुत सारी tangible and intangible customer expectations होती हैं और बहुत सारी tangible and intangible कस्टमर परसेप्शंस होती हैं। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जी आप जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उसकी परसेप्शन है उसका पूरा ख्याल रखें और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जी सर्विस के अंदर जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर फेलियर अकर करेगा, उस फेलियर को किस तरीके से आपने हैंडल करना है उसकी भी एक स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मली ओवरऑल सर्विस, डिफरेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो ओवरऑल इन डिटर्मिनेंट्स के डिटर्मिनेंट्स ये वो स्केल है डिटर्मिनेंट्स का जिस पे वो मेजर की जा सकती हैं कि आइदर सर्विस इज डिपेंडेबल, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, कॉम्पिटेंस है उस सर्विस के अंदर कि नहीं, एक्सेस, कर्टेसी, कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड टेंजिबल्स, ये सारे वो डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी सर्विस को जज किया जा सकता है, आपकी सर्विस की क्वालिटी को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, एक आपको मैं आखिरी दिस इज द फिनिश ऑफ द चैप्टर 6, इसके अंदर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जी अगर सर्विस का फेलियर हो जाए तो क्या करना है। इस केस के अंदर हमें जो एग्जांपल मिलती है वो हमें मैरियट होटल्स हैं, जिस तरह हॉलीडे इन है, जिस तरह सरीना है, इसी तरह मैरियट एक होटल है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है कि जब सर्विस का कोई फेलियर हो जाए, जब उनके पास कोई कस्टमर आए और कहे कि जी मुझे ये सर्विस नहीं मिली, तो फिर क्या करते हैं। उनका एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, एक रूटीन है कि जी वो ये वाला LEARN लर्न रूटीन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर को सुनते हैं, उसके साथ एम्पैथाइज करते हैं। एम्पैथाइज करने का मतलब होता है कि आप अगर आपको कस्टमर कुछ आके कह रहा है कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ जी मुझे समझ आ रही है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इससे आपको ये परेशानियां हुई होंगी। सो फर्स्ट यू लिसन, यू एम्पैथाइज, देन यू अपोलोजाइज, देन यू रिएक्ट एंड देन यू नोटिफाई द कस्टमर। कि कोई भी प्रॉब्लम है कस्टमर की, सबसे पहले उसको सुने, फिर उससे एम्पैथाइज करें या उसकी दिलजोई करें, उसके साथ यू कैन से कि जी उसके साथ आप अंडरस्टैंडिंग का बिहेवियर शो करें कि जी हाँ मुझे समझ आ रही है कि जी आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। उससे अपोलोजाइज करें कि आई एम सॉरी, हम लोग आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सके। उसके बाद उस पर रिएक्ट करें, अगर वो प्रॉब्लम ऐसी है जो हल की जा सकती है उसको हल करें और फिर नोटिफाई करें कस्टमर को कि जी हमने ये प्रॉब्लम आपके लिए हल कर दी है। अब ये वो स्ट्रेटेजी है जब कोई भी आपकी सर्विस फेल हो जाए, यानी आपने तो सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपने सर्विस डिज़ाइन ही इसी तरह से की है कि आप अपनी कस्टमर की परसेप्शन और उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करो, मगर कभी ना कभी फेलियर हो जाएगा तो उस फेलियर से रिकवरी की क्या स्ट्रेटेजी होती है उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, लर्न स्ट्रेटेजी। दिस इज द स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय मैरियट, और इसके अंदर वो सबसे पहले लिसन करते हैं, एम्पैथाइज करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, रिएक्ट करते हैं और फिर आपको नोटिफाई करते हैं कि जी हमने जो आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको हल किया और अब हम आपको बताते हैं आपकी जो प्रॉब्लम थी वो हमने हल कर दी है, अब आपको हमारी तरफ से कोई और मुश्किल या कोई और परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम समरी अगर देखें इस चैप्टर 6 की, इस चैप्टर 6 के अंदर हमने सारी थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी रिलेटेड टू प्रोडक्ट क्वालिटी, थ्योरी रिलेटेड टू सर्विस क्वालिटी। हमने देखी कि TQM क्या होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके अंदर हमने डिफरेंट फिलोसफीज या डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ ली कि जी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या कहती है, 6 सिग्मा क्या कहती है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या कहती है, बेंचमार्किंग क्या होता है और किस तरीके से की जा सकती है, जस्ट इन टाइम क्या होता है
है और इसके क्या पॉजिटिव असरात होते हैं आपकी कंपनी पे या आपकी सर्विसेज पे, और क्या इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं इम्प्लीमेंट करने की। हमने तगुशी कॉन्सेप्ट देखे कि जी तगुशी क्या कहता है, हमने इसकी लिमिटेशंस देखी, हमने इसके डिफरेंट आइडियाज़ देखे कि जी उनके लिए रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स देखे कि कौन कौन से टूल्स हैं। उन टूल्स के अंदर हमने देखा चेक शीट्स क्या हैं। चेक शीट्स बेसिकली डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए होती हैं, इनसे पैटर्न आप निकाल सकते हो, इनसे डिसीजन ले सकते हो। स्कैटर प्लॉट देखा जो दो वेरिएबल्स के दरमियान, अब वेरिएबल्स के दरमियान वही बात आ गई, अभी मैंने आपको बताया ना वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। तो स्कैटर प्लॉट्स जो होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप शो करते हैं। वेरिएबल्स ही स्केल के ऊपर नीचे जा सकते हैं, उनका डिग्री ऑफ फेलियर या डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस पता चल सकता है कि जी अगर इतना ज़्यादा या इतना कम है। तो ये स्कैटर प्लॉट वेरिएबल्स के लिए प्लॉट होता है, ये एट्रीब्यूट्स के लिए प्लॉट नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हमने देखी, परेटो चार्ट्स देखे हमने, फ्लो चार्ट्स देखे। फ्लो चार्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विस को देख सकते हैं कि जी सर्विस किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से डिसीजन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं जहां हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, कौन कौन से वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं। हमने हिस्टोग्राम देखा और हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में देखा कि जी ये होता क्या है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का सारा अगला चैप्टर 6S जो है वो हम उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। रोल ऑफ इंस्पेक्शन हमने देखा कि इंस्पेक्शन कहाँ की जाती है, कब की जाती है, क्यों की जाती है। हमने इंस्पेक्शन के अंदर ये भी देखा कि जी एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी इंस्पेक्शन की कि जी एक ही चीज़ को मैयर आप आइदर वेरिएबल से कर सकते हो या एट्रीब्यूट से कर सकते हो, ठीक है। वो जो रॉड की एग्जांपल दी थी ना मैंने कि जी रॉड की थिकनेस आपने मैयर करनी है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर यू मैयर द थिकनेस बाय सम वर्नियर कैलिपर या कोई भी डिवाइस जिससे आपने उसकी थिकनेस मैयर करनी है। आप या तो उसको डिवाइस से करें या तो उसके लिए आप एक इस तरह का जिग बना लें या इस तरह का टेम्पलेट बना लें और उसके दरमियान में जो थिकनेस है उस थिकनेस पे आपने पाइप चाहते हैं उस सुराख से उस पाइप को गुजारें। अगर गुजर जाता है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, अगर नहीं गुजरता तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो एक ही तरीका है, अगर आप डिवाइस से उसको मैयर करेंगे तो आपके पास डाटा जो आएगा इंस्पेक्शन डाटा वो आपके पास वेरिएबल्स में आएगा। अगर आप इसको इस प्रोसीजर से गुजारेंगे जिसके अंदर आपने एक टेम्पलेट बना लिया और उस टेम्पलेट से आपने एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल कर लिया तो उससे आपके पास डाटा जो है वो एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएगा। फिर हमने TQM इन सर्विसेज देखी कि जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या सर्विस के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमने ये देखा कि ये प्रॉब्लमैटिक होती है, मुश्किल होती है, इसके अंदर बहुत सारे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कस्टमर की। परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं मार्केट में कंपेटिटर्स कितने ज़्यादा हैं उनसे भी और वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमने एक स्ट्रेटेजी देखी कि जी किस तरीके से अगर आपकी सर्विस फेल हो जाए किसी ना किसी पॉइंट पे या कोई प्रॉब्लम पड़ जाए सर्विस के अंदर तो फिर आपने किस तरीके से उसको रिकवर करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने चैप्टर 6 के अंदर देखी हैं कि जी TQM क्या होती है, टूल्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट फिलोसफीज कौन कौन सी हैं, डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिससे हम क्वालिटी मैयर कर सकते हैं, क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं चैप्टर 6S के अंदर। 6S का नाम जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और SPC, ठीक है। SPC अगर आपको पता होगा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, इफ यू नो दिस, तब ही आपकी जो बेस है 6 सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन की बन सकती है, ठीक है। 6 सिग्मा इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, मगर इसकी जो 6 सिग्मा की इम्प्लीमेंटेशन है वो तब तक आपको नहीं अच्छे तरीके से समझ आती जब तक आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की टेक्निक से अच्छी तरह से वाकिफ ना हो, ठीक है। इसके अंदर हम ओवरऑल
चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या? चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जी कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं। कंट्रोल चार्ट्स एक टेक्निक है या एक ग्राफिक डायग्राम है जिससे आप देख रहे होते हो कि जी आपका प्रोसेस जो है आइदर इट इज़ इन कंट्रोल और इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोल चार्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बनाओ, आप कंट्रोल चार्ट सर्विस प्रोसेसेस के लिए भी बना सकते हो। ठीक है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहा जाता है। ये सारी की सारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बेस करती है और हम ये देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है। वी विल सी कि जी आप किस तरह से मीन चार्ट की लिमिट बना सकते हैं, आर चार्ट्स की लिमिट सेट कर सकते हैं यूजिंग मीन एंड आर चार्ट्स। हम देखेंगे कि जी मीन और आर चार्ट्स होते क्या हैं, उनको किस तरह से यूज किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया थे ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, आइदर दैट डाटा इज वेरिएबल और दैट डाटा इज एट्रीब्यूट। वेरिएबल्स के अपने चार्ट्स हैं जिसके अंदर हम मीन चार्ट बनाते हैं, आर चार्ट बनाते हैं। ये ज्यादातर वेरिएबल्स के लिए चार्ट्स होते हैं। अगर आपके पास डाटा इस तरह से है, वेरिएबल में है, तो आप उससे मीन एंड आर चार्ट्स बना सकते हो। अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स के डाटा एट्रीब्यूट के अंदर है तो फिर आप उससे पी चार्ट बना सकते हैं, सी चार्ट बना सकते हैं। हम देखेंगे कि और कौन कौन से चार्ट्स हैं, बस मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक वी विल कवर दीज टू चार्ट्स। फिर हम ये देखेंगे कि जी व्हाट आर द डिफरेंट मैनेजरियल इश्यूज इन कंट्रोल चार्ट्स। हम ये देख सकते हैं कि जी कंट्रोल चार्ट से किस तरह हम मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, किस तरह से उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल चार्ट्स को यूज करके अपने प्रोसेस पे अफेक्ट डाल सकते हैं या अपने प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि जी प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होती है। बेसिकली दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी, ये तब ही आई वुड प्रेफर कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी के, ये मैं आपको पहले जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं क्या उनको बनाया किस तरह जाता है वो पढ़ाने के बाद मैं आपको इन पे एक्सप्लेनेशन दूं। मगर बेसिकली ये जो प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्सेस होते हैं ये यूज होते हैं प्रोसेस की कैपेबिलिटी को कि जी जो आपने जो आपने प्रोडक्ट डिजाइन की है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए जो आपने प्रोसेस लगाया है, अब वो जो आपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन रखी है, क्या वो प्रोसेस इस काबिल है कि वो उस स्पेसिफिकेशन की चीजें बनाए। तो ये जो चीज है कि जी क्या वो प्रोसेस इस काबिल है कि वो इस स्पेसिफिकेशन की चीजें बना सके, उसको प्रोसेस कैपेबिलिटी से मेजर किया जाता है। फिर आखिर में हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग देखेंगे। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जो है वो बेसिकली ये आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से हम सैंपल ले सकें। अब देखो आपके पास 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं होती कि जी जितनी चीज़ें आपके पास आई हैं आप उन सारों को इंस्पेक्ट करो। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैन पावर, ठीक है, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो 100% इंस्पेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब आप इंस्पेक्शन की सैम्पलिंग टेक्निक्स बना देते हो कि जी सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज करते हो कि जी 100% तो नहीं करूंगा मगर 100 में से 2% कर लूंगा कि अगर मेरे पास 100 चीजें पड़ी हुई हैं तो उनमें से 2 चीजों का सैंपल लूंगा और उस सैंपल को सिलेक्ट करूंगा, चेक करूंगा। अगर वो सैंपल ठीक हुआ तो फिर पूरे का पूरा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर ना ठीक हुआ तो मैं पूरे का पूरा रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी सैंपल का साइज किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है, वो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के अंदर आता है और वो एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है जो आपको बताता है। ये हम डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1-2 एग्जांपल्स दूं जिससे आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से आप अपनी सैम्पलिंग पॉलिसी को डिज़ाइन कर सकते हो। ये जो डिसीजन लिया है ना 2% लेने का, सैंपल 2% लेने का, ये आपकी सैम्पलिंग पॉलिसी है ना कि आपने पॉलिसी बनाई है कि मैं 100 में से 2 को सिलेक्ट करूंगा। ये डिसीजन आपने कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और अपनी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।
ठीक है. Statistical process control, SPC, the objective of process control system is to provide a statistical signal when the assignable causes of variation are present. तो basically कोई भी process control system हो, देखें आपका statistical process control है ना, तो ये आपका एक process control system है which is based on statistics. ठीक है. तो कोई भी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोसेस के अंदर, तो आपको एक सिग्नल दे दे, एक कंट्रोल सिग्नल दे दे कि जी अब प्रोसेस जो है इट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. अब प्रोसेस के अंदर एक नॉर्मल वेरिएशन होती है कि जी थोड़ी बहुत नेचुरल वेरिएशंस होती हैं. नेचुरल वेरिएशंस के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. अब प्रॉब्लम तब आती है जब कोई असाइनेबल वेरिएशन हो, कोई कंपोनेंट फेल हो जाए, कोई कंपोनेंट खराब हो रहा हो, कोई कंपोनेंट घिस जाए प्रोसेस के अंदर, तो तब ये सारी की सारी चीजें हैं, कोई बंदा अपना काम प्रॉपर ना कर रहा हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये प्रोसेस के अंदर वेरिएशन क्रिएट करती हैं जो नॉर्मल वेरिएशंस नहीं होती. दीज आर दी वेरिएशन विच कैन बी असाइन टू अ सर्टेन कॉज. बंदा सही काम नहीं कर रहा, मशीन घिस गई है, मशीन का पार्ट्स घिस गए हैं, मशीन में कोई खराबी आ गई है, तो ये सारी की सारी असाइनेबल कॉजेज अगर आए तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आपको एक सिग्नल देता है कि जी आपका प्रोसेस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, इसके बारे में आप कुछ करें. ठीक है. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, वेरिएशन इज इनहेरेंट इन एवरी प्रोसेस. ये वही बात, नेचुरल वेरिएशन होती है हर प्रोसेस के अंदर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, नेचुरल और कॉमन वेरिएशन और कॉजेज, स्पेशल और असाइनेबल वेरिएशन और कॉजेज. जो स्पेशल और असाइनेबल कॉजेज होते हैं उन्हीं की वजह से ऐसी वेरिएशंस आती हैं जिसके बारे में हमें कुछ करने जरूरी होता है. ठीक है. नॉर्मल और कॉमन कॉजेज जो होते हैं उनसे वेरिएशन नॉर्मल होती हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और एज लॉन्ग एज आपका प्रोसेस कंट्रोल के अंदर चल रहा है तो हम उनको छेड़ते नहीं है. Statistical process control provides a statistical signal when assignable causes are present, detects and eliminate assignable causes of variation. अब आपको एक सिग्नल आ गया कि जी एक असाइनेबल कॉज या एक प्रॉब्लम है प्रोसेस के अंदर, उसके बारे में आपने क्या करना है. जब डिटेक्शन हो गई कि जी प्रॉब्लम है असाइनेबल कॉज, फिर उसके बाद आपने उस कॉज को ख़त्म करना है ताकि आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो नॉर्मल अपनी लिमिट्स के अंदर चले. ठीक है. नेचुरल वेरिएशंस क्या होती हैं? नेचुरल वेरिएशंस आर आल्सो कॉल्ड नॉर्मल कॉजेज, अफेक्ट्स वर्चुअली ऑल प्रोडक्शन प्रोसेसेस और सर्विस प्रोसेसेस. एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ वेरिएशन, आउटपुट मेजर्स follow a probability distribution. For any distribution there is a measure of central tendency and dispersion. If the distribution of output falls within acceptable limits, the process is said to be in control. अब आपकी जो नॉर्मल वेरिएशंस होती हैं इनको कॉमन कॉजेज भी कहा जाता है, या कॉमन कॉजेज की वजह से भी होती हैं नॉर्मल वेरिएशन. ये वेरिएशन हर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होती हैं और सर्विसेज के अंदर भी होती हैं. ठीक है. एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ वेरिएशन, ये वो वेरिएशन है विच यू एक्सपेक्ट, इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए. थोड़ी बहुत वेरिएशन प्रोसेस के अंदर आती है, इट इज़ एन एक्सपेक्टेड अमाउंट, इसके बारे में ना हम कुछ कर सकते हैं, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि जी एक थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है. आउटपुट मेजर्स फॉलो अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन में. ठीक है. अब ये जो आखिरी तीन कॉन्सेप्ट हैं ये वही सेंट्रल लिमिट थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स हैं कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, आउटपुट मेजर फॉलो अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जो नॉर्मल वेरिएशंस होती हैं, नेचुरल वेरिएशंस होती हैं, कॉमन वेरिएशंस होती हैं, उससे जो आउटपुट होती है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती है. उसके अंदर एक सेंट्रल लिमिट होती है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती है, उसकी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है और उसकी एक डिस्पर्शन होती है. इफ द आउटपुट फॉल्स विद इन एन एक्सेप्टेबल लिमिट द प्रोसेस इज सेड टू बी इन कंट्रोल.
अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनको नोट कर लें और मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर इनकी विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा कि इससे मुराद मेरी क्या थी। ठीक है, एट दिस स्टेज वी विल जस्ट डिस्कस कि नेचुरल कॉज क्या होता है, असाइनेबल कॉज क्या होता है, असाइनेबल वेरिएशंस आल्सो called special causes or variation. Generally this is some kind of some change in the process, variations that can be tracked to a specific reason. The objective is to discover when assignable causes are present, eliminate the bad causes, incorporate the good causes. अब assignable variation या assignable causes वो होते हैं जो किसी ना किसी स्पेशल कॉज की वजह से आ रहे हो। बंदा काम सही नहीं कर रहा, मशीन खराब हो रही है, मशीन वेयर आउट हो रही है, मशीन के पुर्जे खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो असाइनेबल कॉजेज़ हैं और इनको हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इन चीज़ों को डिटेक्ट करता है और जब डिटेक्ट कर लेता है तो फिर आपको एलिमिनेट करना ज़रूरी, इन चीज़ों को एलिमिनेट करना ज़रूरी है, वरना तो आपकी जो क्वालिटी है उस पर अफेक्ट होगा। ठीक है, अब जो इस स्लाइड के अंदर आउटपुट नेचुरल वेरिएशंस output measures follow a probability distribution. For any distribution there is a measure of central tendency. If the distribution of output falls within acceptable limit, the process is said to be in control. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी प्रोसेस इन कंट्रोल क्या होगा। आपके पास अगर प्रोसेस के अंदर नेचुरल वेरिएशंस हैं, कॉमन कॉजेज हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ लिमिट्स के दरमियान में बनेगी। ठीक है, एक उसकी अपर कंट्रोल लिमिट होगी, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होगी जो प्रोसेस की डिज़ाइन में हम डिफाइन करेंगे कि जी ये प्रोसेस इतनी लिमिट्स के अंदर बना सकता है और वो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इसके अंदर कोई ना कोई असाइनेबल कॉज आ रहा होगा तो वो आपको इस तरीके से शो होगी कंट्रोल चार्ट के अंदर। ठीक है, अब इसकी थ्योरी क्या है मैं आपको इधर से शो करता हूं कि जी टू मेजर द प्रोसेस वी टेक सैंपल्स एंड एनालाइज द सैंपल स्टैटिस्टिक्स फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ठीक है, अब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है, लेट्स से कि मैंने मेजर करना है, अब एक मेरे पास एक मशीन है, उसके अंदर नीचे डब्बे आ रहे हैं, उन डब्बों को वो फिल करती है किसी प्रोडक्ट से। ठीक है, मैंने इस मशीन को, इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल लगाया हुआ है और इसकी परफॉर्मेंस को मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल मैं किस चीज को मेंटेन कर रहा हूँ, अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ प्रोडक्ट की कि जी ये 200 ग्राम होना इसका जरूरी है, तो ये मैं क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूं। अब 200 ग्राम है तो वेरिएबल से भी, इसको वेरिएबल से ही करेंगे। सैंपल्स ऑफ द प्रोडक्ट से 5 बॉक्सेस ऑफ सीरियल टेकन ऑफ द फिलिंग मशीन लाइन वेरिंग फ्रॉम ईच अदर इन वेट। अब आपकी जो मशीन में ये जो सीरियल बॉक्स भर रहे हैं, एक मशीन आपको एक भरेगी, फिर अगला आएगा उसको भरेगी, फिर उससे अगला आएगा उसको भरेगी, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो इस मशीन की जो सारी आउटपुट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, उस सारे आउटपुट से हम 2 या 3 डब्बे या 5 डब्बे उठा लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमने सैंपल ले लिया इस मशीन की पॉपुलेशन से। ठीक है, और उन डब्बों का जब हम वेट करेंगे तो ये जो वेट है ये क्या है, ये सैंपल का स्टैटिस्टिक है, सैंपल का कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो हम चेक कर रहे हैं और वो वेट है, तो हम इस केस के अंदर वेट को क्या कहेंगे, सैंपल स्टैटिस्टिक कहेंगे। अब जाहिर बात है कि मशीन चल रही है तो वो किसी के अंदर 200 भरेगी, अगले डब्बे के अंदर 201 भर देगी, फिर उससे अगले डब्बे के अंदर 190 भर देगी, उससे अगले डब्बे के अंदर 195 भर देगी। तो जरूरी नहीं है 200 ही भरे, वो कम ज्यादा उसके अंदर हो, वेरिएशन तो आ रही है। ठीक है, तो जब आप उन डब्बों को लेते रहोगे, उसकी पॉपुलेशन में से सैंपल लोगे, तो एक डब्बा है उसका वेट इतना है स्केल पे, लेट्स से कि जी ये वेट 0 है या ये वेट आप कह लो 0 है और ये इसका मैक्सिमम वेट है, मैक्सिमम वेट अबाउट लेट्स से 250 तक जाता है, 200 तक हमने भरना है, तो 200 दरमियान में आ जाता है इधर। ठीक है, लेट्स से कि जी ये आपके पास लिमिट आ रही है 200 की। ठीक है,
आपने जितने भी उसके सैंपल लिए तो उनमें से जो है 5 डब्बे वो 200 पे हैं, ठीक है। आगे इससे आगे जितने जाते जाओगे तो उनका वेट बढ़ता गया कि जी 210 पे कितने डब्बे हैं, 220 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, ठीक है। इसी तरह पीछे जाओगे तो ये सारे शो कर रहे हैं कि कितने डब्बों के अंदर कम सीरियल भरा गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी के साथ या दूसरे वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कि जी उसका वेट क्या है और कितने डब्बे उसने भरे हैं उस वेट पे, ठीक है। अब जब आप एनफ सैंपल लोगे, अभी तो हमने थोड़े बहुत कोई 20-25 सैंपल लिए है ना, जब हम अच्छे खासे 100-150 सैंपल लेंगे ना तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बनना शुरू हो जाएगी, जिनमें से एक मीन होगा प्रोसेस का, वो मीन आपको यहां से नजर आ रहा है, ठीक है। एक मीन वैल्यू होगी और उस मीन के अंदर थोड़ी बहुत डेविएशन होगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले कहीं पढ़ी है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप एनफ सैंपल लोगे ना तो जो आपका डिस्क्रीट डाटा है, एक डब्बे का डाटा डिस्क्रीट है ना, इट्स नॉट कंटिन्यूअस, तो डिस्क्रीट डब्बे आप ले रहे हो, एक एक डब्बा ले रहे हो और उसको मैयर कर रहे हो, और आपने 100-150 डब्बों को जब मैयर कर लिया उनका वेट, तो उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनना शुरू हो जाएगी, जिनमें से बाज जो मीन वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और मीन से आगे वाले डब्बे भी होंगे जिनके वजन मीन वेट विच इज 200 उससे ज्यादा भी होगा, और ऐसे डब्बे भी होंगे जो मीन वेट जो 200 है उससे कम भी होगा। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। ये हमने जो स्ट्रेट कंटिन्यूअस लाइन लगाई है ना, ये हमने डिस्क्रीट डेटा की कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेशन कर लिया, ठीक है। ये जब डिफरेंट प्रोसेसेस की कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेशन करें तो उसके लिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं, मगर दिस इज अ टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सो आई विल नॉट एंटर हियर। तो अब आपने जो डब्बे लिए उनको मैयर किया, तो बाज डब्बे हैं जिनका मीन से ज्यादा वजन आ रहा है, बाज डब्बे हैं जिनका मीन से कम वजन आ रहा है, और उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी या उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो शो हो रही है इससे, ठीक है। There are many types of distributions including the normal distribution, but distribution do differ in terms of central tendency, mean and standard deviation और variation and shape। अच्छा, अब एक तो आपके पास प्रोसेस जो आप लोगे आउटपुट किसी भी प्रोसेस की, आप उस आउटपुट को डिफरेंट तरीकों से उसकी डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं। सेंट्रल टेंडेंसी की वेरिएशन ये होगी कि जी पहले बाज प्रोसेसेस होंगे, अभी जो पिछली एग्जांपल थी जिसके अंदर 200 ग्राम था, अब अगर किसी और मशीन से करोगे तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी 220 भी निकल सकती है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन इस तरह से भी आ सकती है कि जी वो एक खास हद पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रही, मगर वो इक्वली सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर नॉर्मली मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन उसकी सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फैलाव बताता है, ठीक है। तो डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की वेरिएशन आ सकती है, वेरिएशन इन स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकती है, और शेप की भी आ सकती है। शेप जो होती है वो नॉर्मली स्क्यूनेस से शो होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसको स्क्यूनेस कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। If only natural causes of variations are present, the output of the process forms a distribution that is stable over time and is predictable, ठीक है। अब आपने वही डब्बों वाला प्रोसेस ले रहे हो, सीरियल बॉक्स का एक मशीन है, वो सीरियल बॉक्स को भर रही है, जो वेट उस पर सेट किया गया है वो 200 ग्राम है, आप वो मशीन भरती जा रही है और डब्बे आते जा रहे हैं, ठीक है, आते जाएंगे। लेट्स से कि जी आज के दिन में उस मशीन ने 2000 डब्बे फिल किए हैं, ठीक है। तो ये आज के दिन की उसकी पॉपुलेशन है, ये उसकी पॉपुलेशन है आज के दिन की। अगर आप उस मशीन की लाइफ टाइम की पॉपुलेशन देखोगे तो जब तक वो मशीन काम कर रही है तब तक उसने जो चीजें बनाई हैं,
अब जो उसने फिल की हैं आज के दिन में, उससे हम सैंपल लेते जाएंगे, 5 का सैंपल लिया हर घंटे बाद, ठीक है। तो हमने 24 घंटों में 5 के सैंपल हमने लिए हर घंटे, ठीक है। तो ये क्या लिए हमने, उसके सैंपल लिए और उन 5 डब्बों का वजन चेक किया, तो वो जो वजन है वो उसके सैंपल का स्टैटिस्टिक है। अगर प्रोसेस और उससे एक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने देख ली कि जी अगर हम उसकी वेट्स को चेक करेंगे तो उनका एक मीन वेट होगा और थोड़ी बहुत उसके अंदर वेरिएशन होगी, और वो वेरिएशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल की जा सकती है, अप्रोक्सीमेट की जा सकती है। अगर आपका प्रोसेस, फिलिंग प्रोसेस स्टेबल है, ठीक है, लेट्स से कि जी वो 200 भर रहा है तो उसका मीन 200 ही रहेगा, मीन 200 ही रहेगा, मीन इसका 200 ही है, यहां भी 200 है, और थोड़ी बहुत उसकी जो वेरिएशन है, उसकी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज द मीन, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसका फैलाव है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। और आपको पता चलता जाएगा कि आगे भी वो स्टेबल रहेगा। अगर उसके अंदर नॉर्मल वेरिएशंस हैं तो ये स्टेबिलिटी उसके अंदर रहेगी। मगर अगर उसके अंदर कोई असाइनेबल कॉज है, लेट्स से कि जी मशीन का कोई पुर्जा खराब हो जाता है, ठीक है, या मशीन की टाइमिंग खराब हो रही है, या मशीन की इनपुट पे सीरियल सही तरीके से नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी इस केस के अंदर 200 है, इस केस के अंदर देखें ये क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गई है, ये 200 से आगे चली गई है, 220 पे चली गई है, ये भी इस साइड पे आप देखें तो ये देखें ये वाली लाइन तो 200 है ना, तो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी यहां खड़ी हुई है कहीं, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी यहां कहीं खड़ी हुई है, मगर ये पॉइंट 200 है तो ये 200 से कम हो गया है। इसी तरह ये इसकी मीन वैल्यू ये है, ये 220 तक मेरे ख्याल में कहीं जा रही है, मगर ये पॉइंट 200 का है। तो आप देखें कि डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अब डिफरेंट जगहों पे जा रही हैं, उसका एक सेंट्रल वैल्यू भी खराब हो गई है और उसकी डिस्पर्शन भी खराब हो गई है, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जी इस प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब इसी चीज को अगर हम इस तरीके से 2 डायमेंशन में मॉडल करें, ये जो सारी की सारी हमने वेरिएशंस देखी हैं, ये तो 3 डायमेंशंस है ना, आप देखें एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, तीसरी डायमेंशन टाइम की, तो आपने 3 डायमेंशंस में बनाया हुआ। अब हम इसको 2 डायमेंशंस में बनाए ना, तो वो इस तरीके से बनेगा और इसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। क्या हो रहा है, ये मैंने हर केस के अंदर ये इसकी मीन वैल्यू है और इसकी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, तो ये पॉइंट्स मीन की वैल्यू शो कर रहे हैं और वो उनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने भी पहले चेक किया था ना, टाइम के अंदर ऐसे बन रहे थे, तो वो 3 डायमेंशंस में था ना, तो ये अब हमने 2 डायमेंशंस के अंदर बना दिया। कंट्रोल चार्ट आपको ये बताता है कि जी प्रोसेस किस तरीके से हिल रहा है, प्रोसेस का मीन क्या है, प्रोसेस की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा, द पर्पस ऑफ कंट्रोल चार्ट्स इज टू हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल वेरिएशन एंड असाइनेबल वेरिएशंस। इसका बेसिक आइडिया ये होता है कंट्रोल चार्ट का कि क्या आपका प्रोसेस नेचुरल वेरिएशन से गुजर रहा है या असाइनेबल कॉजेस की असाइनेबल वेरिएशन से गुजर रहा है, ठीक है। अगर प्रोसेस इन कंट्रोल एंड केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन द कंट्रोल लिमिट्स, तो आपके प्रोसेस की आउटपुट इस तरह की नजर आएगी। इफ इट इज इन कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है, मगर इट इज नॉट केपेबल, तो फिर इसके अंदर आपका थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट प्रोडक्ट बनेंगी और ये आपका क्या होगा, स्क्रैप हो जाएगा सारे का सारा, क्योंकि ये कंट्रोल लिमिट्स के अंदर नहीं बना हुआ। अगर प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर उसकी आउटपुट इस तरह की नजर आएगी, वो ज्यादातर कंट्रोल लिमिट से बाहर ही होगा, या तो कुछ हिस्सा उसका अंदर होगा, कुछ हिस्सा उसका बाहर होगा। अब हमारे पास जो है ना वो लिमिट्स ये हैं, डिजाइन टॉलरेंसेस ये हैं। अगर कोई चीज इन लिमिट के अंदर बनेगी तो दैट इज एक्सेप्टेबल, अगर कोई चीज इन लिमिट से बाहर चली गई तो दैट इज ऑटोमेटिकली स्क्रैप और डिफेक्टिव टू अस, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर प्रोसेस केपेबल है तो वो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर बनाएगा, और अगर वो
इन कंट्रोल है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, हमने देखना है कि प्रोसेस को कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यूज करेंगे। और इसका जो आखिरी सेक्शन था चैप्टर का, उसमें प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात की गई थी। अगर प्रोसेस कैपेबल है तो इट विल प्रोड्यूस विद इन दी कंट्रोल लिमिट्स, इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन दी कंट्रोल लिमिट्स। जो प्रोडक्ट की डिजाइन लिमिट्स हैं उसी के हिसाब से अगर केपेबल प्रोसेस है तो वो उन डिजाइन लिमिट्स के दरमियान में प्रोडक्ट को बनाएगा, और इसके अंदर थोड़ी बहुत नेचुरल वेरिएशन होगी, और अगर वो इन कंट्रोल होगा तो उसकी आउटपुट आपको इस तरह की मिलेगी। अगर वो इन कंट्रोल है मगर केपेबल नहीं है तो देखें वो कुछ पोर्शन तो इन लिमिट कंट्रोल लिमिट्स के अंदर बना रहा है मगर कुछ पोर्शंस वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो दिस प्रोसेस इज नॉट केपेबल बट इट इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है इट इज आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आधे से ज्यादा चीजें या मीन ही आपका शिफ्ट कर गया आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट्स। तो लेट्स एंड द टुडेज लेक्चर विद द कॉन्सेप्ट्स और समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आज हमने अपना जो लेक्चर स्टार्ट किया था उससे वो हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट किया था, चैप्टर 6 के लास्ट पार्ट से। उसमें हमने देखा कि जी सर्विस की क्वालिटी क्या होती है, उसको किस तरीके से उसकी मेजरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने डिस्कस किया कि जी एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं और टीक्यूएम की इम्प्लीमेंटेशन इन सर्विसेज क्या होती है। अब उसके बाद हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया और मैंने आपको इस चैप्टर का पहले एक लेआउट दिया कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, और फिर मैंने आपको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर दिखाया कि जी अगर आप प्रोसेस की स्टैटिस्टिकल थ्योरीज जो हैं उनको फॉलो करें तो प्रोसेस की आउटपुट किस तरह की होनी चाहिए, असाइनेबल कॉजेज क्या होते हैं, कॉमन कॉजेज क्या होते हैं, और वो किस तरीके से आपके प्रोसेस की आउटपुट के अंदर नज़र आते हैं। कि जी अगर आपका प्रोसेस इन कंट्रोल है तो उसकी आउटपुट कैसी होगी, अगर आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसकी आउटपुट कैसी होगी, और कंट्रोल चार्ट्स किस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल जो मैंने आपको शो की थी, 2D शो की थी ना, इसको ये जो एग्जांपल शो की है 3D शो की है। अगर आपने इसको कंट्रोल चार्ट्स में बनाना है तो वो 2D में किस तरह बनेंगे और उनसे हम क्या आइडिया ले सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम आगे और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कंट्रोल चार्ट्स के। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद।